My children, this is the last lesson I shall give you. No, 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 this is not my last lesson. This is your last lesson. This is your first lesson, Flamingo, 10+2 class. Hello students, how are you all? और बड़े ही अच्छे ढंग से अल्फांस डोडे ने अपनी बात रही है इस चैप्टर में, द लास्ट लेसन जो हम स्टडी करने वाले हैं. सो टुडे इट्स फ्लेमिंगो, लेसन 1, द लास्ट लेसन बाय अल्फांस डोडे. फ्रेंच जो है इसका नरेटर है, वो याद करता है कि कैसे एम हिमल सर तो चले गए लेकिन उन्होंने हमें क्या क्या सिखाया, वे क्या क्या कहा करते थे, हम कैसे मिस कर रहा है, इसकी ये कहानी है. मैं शुरू करता हूँ समरी को. लेट्स गो फॉर इट. व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टोरी इन द बिगनिंग इज फ्रेंच इज वेरी लेट इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल इंटेंशनली बिकॉज he is dread of scolding of M. Himmel sir, because he is going to ask French about the rule of participles, about which he did not know even the first word, even a single word. So he thought of running away, not going to school. The day is warm, birds are chirping, and Prussian soldiers are drilling. All this seems to be more tempting than the rule of participle to French. But he had strength to resist, and he hurried off to school. He sees on the way that there is crowd in front of bulletin board. This is the same bulletin board from where they are getting bad news for last 2 years, lost battles, the draft of next activity and the orders of commanding officer. They are getting news from this very bulletin board. He sees without stopping and try to reading what is next order. And he thinks what can be the matter now, but he goes ahead without reading it. Watchtower, a blacksmith is there. He says him, don't go so fast, Bob. Will get to your school in plenty of time. अब इस लाइन का बड़ा मतलब है, वो आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा. यहाँ पर सरकाज़्म यूज़ करता है, वो उसको मॉक करता है कि आप आराम से चले जाना, बहुत टाइम है अभी. बताता है कि जो फ्रेंच पीपल है, पीपल ऑफ अल्सेस है, उनकी हैबिट है, हैबिट ऑफ लिविंग वर्क पेंडिंग इनकम्प्लीट. देयर इज़ नो टाइम लाइक प्रेजेंट. ये उनको एम हिमल ही बताता है. सो वी शुड बी टाइमली. ये हमें लेसन दे रहा है हमें. ही हरीड ऑफ टू स्कूल एंड रीचेज हिमल गार्डन. ना ही इज़ पेंटिंग, ठीक है ना, वो जल्दी जल्दी जाता है ना वो. तो यूजली बसल कैन बी हर्ड फ्रॉम स्ट्रीट इन द स्कूल, बट टुडे it is a different atmosphere there. There is no sound of opening and closing of tasks, no sound of lesson repetition, and no rapping of ruler on the table is there. Today all is silent as it is Sunday morning. He sees there that his classmates are inside, अंदर बैठे हैं सभी. आज क्या हो रहा है यहाँ पर? And what M. Himmel is doing, he is moving up and down and ruler under arm. उसके हैं वो इधर उधर घूम रहा है. फ्रेंच क्या करता है? वो ही ओपन्स द डोर. ही इज़ ब्लस्ड एंड फ्राइटन्ड ऑन द सिचुएशन. जो एम हिमल है उसको डांटते नहीं हैं कि यू आर लेट, तो वो सिंपली कहते हैं गो टू योर प्लेस फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. गो टू योर सीट क्वाइटली फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू. इस तरह से हिमल सर ने उसको कहा कि फ्रेंच अंदर आ जाओ, तो वो अंदर आके बैठ जाता है. He sees that Himmel sir is wearing today green coat, frilled shirt and black silk cap. Still he does not know why he is wearing the dress that he used to wear on inspection and prize days. And he sees that school is strange today. Strange because villagers on the back benches are there, so everything is strange there. He does not know why old Hauser is there, and he has brought his old primer. Primer होता है कायदा, उसके हाथ में है. Himmel starts the same grave and gentle tone में वो बात शुरू करता है. क्या कहता है वो? The order from Berlin that we are no longer to teach French. After today, the German is to be taught in our schools. The German master is on his way here, and when he arrives, I shall leave you. This is my last lesson in our own language, so I want you all to be very attentive.
तो इस तरह से उसने कहा कि क्या क्या होने वाला है, अब क्या चेंज आ रहा है. सो इट इज़ हिज लास्ट लेसन. सो ही टेल्स स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स टू बी मोर अटेंटिव. ये सुनकर नाउ जो है फ्रेंच कम्स टू नो ऑफ द थिंग्स. वो याद करता है कि वो क्या पढ़ रहे थे, वो नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी. वो न्यूज़ यही थी, no more French will be there in schools of Alsace and Lorraine and only Germans is to be taught. So this was like a thunderclap. These words were very startling and unexpected, and it was unfortunate. And he felt, French felt very sorry that he had not learnt his lessons well. अब वो सोचता है कि who will teach now. वो कहता है, वो बड़ा नर्वस फील करता है. वो महसूस करता है कि उसने स्टडी उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया, और वो अपनी पैटी थिंग्स के लिए, टू कलेक्ट बर्ड्स एग्स के लिए, एंड फॉर स्लाइडिंग ऑन द जार रिवर जाने के. एंड वो बोलता है, याद करता है, दीज बुक्स वर कंसिडर टू बी नुइसेंस फॉर हिम. वो सोचता है कि नाउ हेमल सर इज़ गोइंग एंड आई विल नेवर सी हिम अगेन. तो ही फॉरगेट्स हिज रूलर, कि उसके रूलर को भी भूल जाता है और उसके क्रैंकी नेचर को भी भूल जाता है. वो सोचता है कि सर तो बहुत अच्छे थे, आज वो जा रहे हैं. तो अब उसे पता लगता है कि दैट इज़ वाई ही इज़ वेयरिंग दिस ग्रीन कोट एंड दिस फ्रिल्ड शर्ट एंड सिल्क कैप. तो ये वो डाले हुए है. वो देखता है कि पीछे जो हैं विलेजर्स बैठे हुए हैं बैक बेंचेस पर. दे टू आर वेरी सॉरी टुडे बिकॉज दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. वो ज़्यादा दिन स्कूल क्यों नहीं गए. वो सोच रहा है कि हमारे टीचर कितने अच्छे थे ये, जिन्होंने जो हु गेव दिस विलेज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड शोविंग रिस्पेक्ट टू इट्स टू हिज कंट्री दैट वाज नॉट देयर्स एनी मोर. तो एम हेमल सर जो हैं उन सबको बुलाते हैं टू रिसाइट. एंड उसको फ्रेंच को सबसे पहले बुलाते हैं कि चलो रिसाइट करो, लेकिन उसे बड़ा अफसोस होता है कि उसने वो लेसन याद नहीं किया है. उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, वो सिर उठाकर भी नहीं देख सकता है. ही कुड नॉट लुक अप दैट डे. तो उस पर भी कहते हैं, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू फ्रेंच दो आई ट्राइड वेरी हार्ड. And if you could not understand French, don't blame yourself. Every day we said ourselves, we have plenty of time tomorrow. This is the big problem of France. She had put all her learning till tomorrow. It is too late now. They are taking away our country from us. But you must go on reading at home as long as they hold after I am gone. Because if you continue with this, it is as if you have keys to their prison. I remember the words, in times like these, let us not despair. For to despair is to desert France. तो ये हैबिट की आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तो ये हमें जो है बड़ी भारी पड़ी है. वो बताते हैं एम एल सर कि इट कॉस्टेड अस ऑल दिस व्हाट इज़ हैपनिंग टुडे, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. क्योंकि एल्सेस की आदत है, शी पुट्स हर लर्निंग टिल टुमारो. और अब वो सोचते हैं कि ये जर्मन लोग क्या कहेंगे कि हाउ फ्रेंच पीपल वी आर, कि दैट वी डोंट नो इवन आवर ओन लैंग्वेज, हमें अपनी भाषा ही लिखनी पढ़नी नहीं आती. इस पर वो कहता है कि मैं आपको दोष नहीं देता. Neither your parents जो थे nor you were interested anxious for learning, and rather they were more interested in sending you to earn more money, to work and to send you to mill or farm for little more money. Me too is to blame. ने भी तो कई बार आपको कहा कि आप क्लास रहने दो और पौधों में पानी दे लो, to water the plant. And when I went for fishing, मैंने भी तो आपकी छुट्टी कर दी थी. वो बोलता है कि French is the most beautiful and clearest and logical of world language, and we should guard it and not forget it. Because if people are enslaved, अगर किसी देश के लोग गुलाम हो गए हैं, and they guard their language, it is as if they have key to their prison. They are taking away our country from us. But you must go on reading at home as long as they hold after I am gone.
because if you continue with this, it is as if you have keys to their prison. तो जो उनकी कंक्वेयर की प्रिजन है, उनकी चाबी उन्हीं के हाथ में रहती है. इफ़ दे वांट टू कंजर्व, इफ़ दे कंजर्व देयर लैंग्वेज. देन कम्स ऑन ग्रामर लेसन. वो फ्रेंच यहाँ याद करता है कि कैसे उस दिन का वो सारा लेसन उसे बड़ी आसानी से याद हो गया. सो वो रियलाइज़ करता है कि इट वाज बिकॉज ही हैड नेवर लिसन टू हिम केयरफुली, एंड टुडे व्हेन ही इज़ लिसनिंग टू हिम केयरफुली, द लेसन जो है एम हिमल सर गेव दैट डे वॉज क्लियर टू हिम. तो वो ऐसे देखता है जैसे लास्ट लेसन जो था एम हिमल का, वो चाह रहा है कि ही वांटेड टू गिव ऑल लैंग्वेज, ऑल नॉलेज ही वाज हैविंग तो इन आवर हेड्स. तो फ्रेंच याद करता है कि इन वन स्ट्रोक, एक ही बारी में वो सब कुछ हमारे वो अंदर डाल देना चाहता था भाषा के बारे में. तो वो बोलता है यहाँ पर फ्रेंच याद करता है कि देन ही कम्स टू राइट एंड ही गेव देम न्यू नोटबुक्स, न्यू कॉपी. वो रिटर्न होता है उसके ऊपर फ्रांस अल्सेस जो उस पर लिखा हुआ है. तो उनके रूम में भी जो हैं फ्लैग्स जो हैं फ्लोट कर रहे हैं. साइलेंट है ना, ऑल अवेयर एवरीवेयर, इट्स ऑल स्टिल एवरीवेयर, देयर इज़ वन साउंड दैट इज स्क्रैचिंग ऑफ पेन ओवर द पेपर्स की ही साउंड है. तो कुछ बीटल्स भी एंटर करते हैं, लेकिन नो स्टूडेंट या नो वन गिव्स अटेंशन टू दीज फ्लाइंग बिट. तो ऑन द रूफ जो है द पिजन्स आर कोइंग, आर सिंगिंग. तो यहाँ पर फ्रेंच उनको देखकर सोचता है कि क्या इन पिजन्स को भी है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन टू. तो वो याद करता है कि क्या इन कबूतरों को भी ये जर्मन लोग कह सकते हैं कि आप भी जो है जर्मन में कू करो. इसी तरह तो हमारे साथ भी है ये, वी आर फ्रेंच पीपल, हमें हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को बचाने का, कंजर्व करने का पूरा राइट होना चाहिए. तो ऐसे ही जो ये पिजन जो हैं ऊपर कू कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन ऑल्सो. तो इन पिजन्स को भी वो ऐसा करेंगे. तो ये जो है क्वेश्चन करता है, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. तो हिमल वॉज मोशनलेस, ग्रेज कर रहा है एट द थिंग्स. ही वांट्स दैट ही शुड फिक्स इमेज ऑफ दीज थिंग्स इन हिज माइंड एज ही हैज़ गिवन 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस. एंड उसका प्लेस है, उसका गार्डन है, क्लास को वो देखता है, बेंचेस को देखता है, डेस्क को, वॉलनट ट्रीज़ को जो हॉप वाइन है ने लगाई थी. तो ऐसे लगता है कि एज इफ हिज हार्ट इज़ ब्रोकन. और ऊपर जो है उसकी सिस्टर, शी इज़ पैकिंग हिज ट्रंक एज दे आर लिविंग नेक्स्ट डे. तो आफ्टर राइटिंग हिस्ट्री लेसन आता है, बेबी चैंटिंग होता है वहाँ पर. तो वो एक सिंग करते हैं, बा बे बी बू बू. तो वहाँ पर होज़र जो है खड़ा होता है और कुछ लेटर्स को जो है करेक्टली जो है वो स्पेल्ड करता है. तो बड़ा इमोशनल एक लास्ट लेसन में नॉट ओनली एम हिमल सर इज़ इन्वॉल्व, बल्कि विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स आर इमोशनल पर फील एक जो है आ रहा है, टच आ रहा है, एक पैट्रियोटिक स्पिरिट आ रही है कि अब हमें क्या करना है. व्हेन जर्मन हैज़ कैप्चर्ड Alsace and Lorraine districts, what is their responsibility now. तो फ्रेंच जो है रिमेंबर करता है दिस लास्ट लेसन ऑफ हिमल्स. एंड एट दैट टाइम जो है चर्च का जो क्लॉक है वो स्ट्रक करता है एट 12, इट इज़ 12 नाउ. और ट्रम्पेट्स ऑफ ड्रिलिंग सोल्जर जो है उसकी आवाज़ आती है. तो इस पर एम हिमल सर खड़े हो जाते हैं. इज पेल एंड ही नेवर लुक्ड सो टॉल. तो वो एक बार फिर से उसको एड्रेस करता है फ्रेंड्स, और उसका गला जो है चौक हो जाता है, वो बोल नहीं पाता है. इट इज़ समथिंग दैट इज़ स्टॉपिंग हिम टू स्पीक. उसका गला चौकड है. ही कुड नॉट गो ऑन. ही टर्न टू ब्लैक बोर्ड की ओर जाता है और वो लिखता है वाइव ला फ्रांस. और वहीं पर वो रुक जाता है और अपना सिर जो है दीवार पर लगाता है कुछ इस तरह से, और वो जेस्चर करता है कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो. वो कहता नहीं है लेकिन जेस्चर ऐसा बनाता है, और इस तरह से ये लेसन ख़त्म होता है. So children, this was the summary of the lesson exercise of this chapter. So I am here with these important questions which are asked frequently in your final exam. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर. हाउ डिड फ्रेंच फील when M. Himmel said that it was his last lesson at school? आपको कैसा लगेगा अगर आपके टीचर अचानक आपको पता लगे क्लासरूम में कि इट इज़ हर लास्ट लेसन? तो यू विल बी शॉक्ड. सो फ्रेंच वाज शॉक्ड. तो
रीजन के पीछे उसने बोला कि ही कर्स्ड द प्रूशियन रूलर्स, क्योंकि रीजन तो वही थे ना, जर्मन ट्रूप्स हैव कैप्चर्ड अल्सेस एंड लॉरेन एंड ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैज़ कम दैट नो मोर फ्रेंच विल बी टॉट इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस, है ना, नो मोर फ्रेंच, ओनली जर्मन विल बी टॉट नाउ. तो he cursed the Prussian rulers, he cursed himself also. Not only he cursed Prussian rulers, but he cursed himself also. He cursed for not learning his lessons. तो वो फील बताना है ना, तो उसने खुद भी जो है cursed फील किया, guilty फील किया कि he cursed himself for not learning his lessons. He used to call his books a nuisance. वो इन किताबों को nuisance मानता था अब तक, but now he was sorry that he would never see Mr. Hamel again. तो आप ये लिखिए, this was the feeling of French when he came to know that it was M. Hammel's last lesson. You can write this answer. Next question आता है, what did M. Hamel say about the French language? क्या कहा उन्होंने लैंग्वेज के बारे में? He called the French the most beautiful language. He said that it was the clearest and the most logical language. और उसने बताया, he wanted his people, his students to keep it alive and never forget it. When I am gone, you study it at home. स्कूलों में ना पढ़ाई जाए लेकिन आपने भूलना नहीं है, आप बोलिए. As it is the key to German's prison. कि ये तो जर्मन की जेल की चाबी आपके हाथ में रहेगी. तो ये बताया उन्होंने कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बच्चों को. तो यू कैन राइट दिस आंसर इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे? कि क्या उसने तैयार करके जाना था. तो आप लिखिए, फ्रेंच दैट डे जो है, ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, because M. Himmel had said that he would question them on participles. और क्या था, French did not know even the single word of about participles. तो this will be the answer. French स्कूल आता है तो वो क्या unusual देखता है. तो आप लिखिए इसके आंसर में, यूजली क्या होता था, when school began there was a great bustle which could be heard out in the street. But it was all very still that day, all calm. Everything was quiet as if it was Sunday morning. There was no opening or closing of desk, no repetition in unison. His classmates were already there in places. He saw that teacher's ruler, instead of rapping on the table, was under his arm. तो आप ये सब लिखिए, ये unusual था, क्या हो रहा था. और विलेजर्स जो थे बैक बेंचेस पर थे. एंड हेमल सर वाज वेयरिंग अ ड्रेस विच ही यूज टू वियर ऑन पर्टिकुलर ओकेजन्स ओनली, प्राइज डेज पर है. तो आप ये लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था. तो फॉर द लास्ट 2 years वही बुलेटिन बोर्ड था ना, फ्रॉम वेयर दे वर गेटिंग ऑल बैड न्यूज़. तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. जर्मन ने had put up this notice on the bulletin board. तो आप ये लिख सकते हैं इसके आंसर में. क्वेश्चन आता है, the people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? लोगों को लगा कि भाषा तो बहुत ज़रूरी है. उन्हें क्यों लगा? कैसे पता लगता है आपको कि उन्हें लगा? तो M. Himmel sir, not only he told the students but also the villagers that henceforth only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. Those who called themselves Frenchmen would neither be able to speak or write it. He praised French as the most beautiful, the clearest and most logical language in the world. He said for the enslaved people their language was key to their prison. Then the people realized how precious the language was to them. Actually, it was a duty of a teacher like M. Himmel to make them realize this fact, that how important is their language. It is a key to their prison, enemy's prison. This shows people's love for own culture, tradition and country. Pride in one's language reflects pride in
द मदरलैंड। ये सब उसने उसको बताया और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि भाषा हमारी ज़रूरी है। तभी तो ओल्ड होजर कायदा लेकर भी आ रहा है कि अब नहीं पढ़ सके बचपन में, नहीं स्कूल जा सके, अब पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इन कबूतरों को भी क्या वो जर्मन में पढ़ाएंगे? ये जर्मन लोग जो हमें कह रहे हैं, व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये जो फ्रेंच ने कहा था, जो उसके रूम में कबूतर जो है सिंग कर रहा था, कू कर रहा था। तो दिस कमेंट ऑफ फ्रेंच शोज ए फ्रेंचमैन्स टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन, द लैंग्वेज ऑफ द कंक्वेयर्स। अपनी भाषा छोड़ दो, हमारी सीखो, ताकि आप परमानेंट एनस्लेव ही रहें। Being deprived of the learning of mother tongue would mean cutting off all bonds with the motherland. Teaching the pigeons to sing in German indicates how far the German would go in their terms of linguistic chauvinism. अपनी भाषा का थोपना कहाँ तक वो जा सकते हैं जर्मन पर, अपनी पकड़ ग्रिप मजबूत करने के लिए, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के लिए कितना दूर तक जा सकते हैं? क्या वो इन पिजन्स को भी कहेंगे कि जर्मन में ही सिंग करो, यू गो इन जर्मन पिजन, क्या वो कहेंगे ऐसा? तो ये मीनिंग आप रख सकते हैं। डिड मिस्टर हैमल गेट एंग्री विद फ्रेंच फॉर बीइंग लेट? फ्रेंच उस दिन लेट हुआ तो सर ने क्या कहा? गुस्सा किया? नो, मिस्टर हैमल डिड नॉट गेट एंग्री विद फ्रेंच, रादर ही सेड वेरी काइंडली, Go to your place, little French. We were beginning without you. कैसे कहा होगा? देखिए आप। Go to your seat quietly, French. We were beginning without you. तो उन्हें डांटा नहीं, बल्कि बोला अंदर आ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। So, children, these were the important questions which are asked in your exam most frequently. मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये लेसन अब तक क्लियर हो गया होगा। Still, if you have any doubt, you can come. I will make it clear to you. I am with you. I wish best of luck for your success. When you enjoy this, love your life, live your life. Bye bye. Thank you.